Okay. Done with the present marking. First of all, everyone stop raising your hand now. जब आपको बोला जाए then only raise your hand. Now stop raising everyone. Now if you have any query or what then only आपको अपना hand raise करना है. अगर आपको कोई problem है, कुछ पूछना है then only you are going to raise your hand. Now stop everyone. Stop raising your hand. Okay. So we will start by standard 5th, then 6th and 7th. Okay. Standard 5th, your lesson number 3. That from testing to digesting. जो भी हम खाते हैं उसको पहले हम टेस्ट करते हैं, राइट? वॉट एवर वी ईट, अगर हमें उसका टेस्ट पसंद आए तभी हम उसको खाते हैं. यस और नो? टेल मी. यस. अगर किसी भी चीज का हमें टेस्ट पसंद आए तो ही हम उसे खाते हैं और देन वो चीज डाइजेस्ट होती है. तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? इज इट विजिबल? ओके. It's not getting zoom. I don't know why. Everyone, mic off रखना है, otherwise I am going to remove you from the class. Okay. So, from testing to digesting, different tests. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter karela, that is bitter gourd. Give me gur, jaggery and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." देखिए, जुम्पा किचन में भाग के गई और उसने अपनी माँ से कहा कि मैं ये करेला नहीं खाने वाली, मुझे गुड़ एंड रोटी दे दो. लेकिन माँ ने हंस के कहा, तुमने सुबह ही शक्कर एंड रोटी खाई है. Julan taste Jhumpa. Don't you get bored of only one kind of taste? Jhumpa replied quickly. Do you get bored of with leaking imli, tamarind? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli. Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela, said Jhulan, and looked at her mother. They both laughed heartily. So Jhulan झुम्पा को चिढ़ाने लगी कि तुम्हें एक ही चीज से बोर नहीं होता, हमेशा एक लाइक रोटी एंड स्वीट ही थिंग तुम्हें खानी है. तो झुम्पा ने कहा कि तुम्हें इमली की टेस्ट जिस तरह पसंद है मुझे भी एक टेस्ट पसंद है. तो झूलन ने कहा कि मुझे खट्टी इमली पसंद है लेकिन मुझे स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स, मतलब मीठी और नमकीन चीजें भी पसंद है और मैं करेला भी खाती हूँ. एंड मदर एंड शी laughed heartily. Julan said to Jhumpa, let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is. तो अभी झूलन ने झुम्पा से कहा कि हम लोग एक खेल खेलते हैं जिसमें आप तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है एंड मुंह खोलना है. मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी एंड यू हैव टू टेल व्हाट इट इज. तुम्हें मुझे बताना है कि वो क्या है. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके.
Now, Julian took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jumpa's mouth. Sour lemon, Jumpa replied quickly. तो झूलन ने क्या किया, कुछ लेमन जूस के, नींबू के रस के कुछ ड्रॉप लिए और झुम्पा के मुंह में डाल दिए। झुम्पा ने जल्दी से रिप्लाई किया कि यस इट्स अ खट्टा नींबू। झूलन then pick up a small piece of jaggery. Her mother suggested crush it. Otherwise, she will know what it is. Julan crushed the jaggery, but Jumba easily guessed it. तो झूलन ने क्या किया, गुड़ लिया और गुड़ डालना चाहा उसके मुंह में और झुम्पा के मुंह में, लेकिन मदर ने क्या बोला, माँ ने क्या बोला कि इसको क्रश कर दो ताकि वो पहचान ना पाए, लेकिन झुम्पा ने टेस्ट इजीली पहचान लिया। They played the game with different food items. Jumpa could tell the fried fish even before tasting it. Julan said, now close your nose and tell me what this is. Jumpa was confused. It is a bit bitter, a little salty, and somewhat sour. Give me one more spoonful. Julan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jumpa's eyes, and said, here here it is. Eat. Jumpa laughed. Yes, give me more. So, फिर उन्होंने क्या किया, फ्राइड फिश, फिश का तो हमें स्मेल भी पता चलता है खाने से पहले, यस और नो, दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन मस्ट नो दिस, यस यस। सो उन दोनों ने क्या कहा, क्या किया कि उन्होंने टेस्ट किस तरह होते हैं वो फील किए। Now, Julian's mouth started watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. अभी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड 5 आपको 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको पसंद है एंड उनके टेस्ट कौन से है। जैसे कि अगर आप आम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग रॉ मैंगो, तो उसका टेस्ट होता है सोर। अगर आप गुलाब जामुन लिख रहे हो तो उसका टेस्ट होता है स्वीट, इस तरह से। ओके, लिखिए। ओके, स्टैंडर्ड 5, 5 कौन कौन प्रेजेंट है, समझा है आपको क्या करना है? यस, हरकीरत इज देयर एंड okay, start writing. Standard 6. Now, let's start with you. Okay. We have learned about all the components of food, right? Once again, I will revise components of food. Some sources of carbohydrates. Carbohydrates कहाँ कहाँ से मिलता है? Sweet potato, sugarcane, papaya, melon, mango, maize, bajra, rice, and wheat. Then some sources of fats. Fats के plant sources कौन से है? Sunflower oil, mustard oil, nuts, till, groundnuts, and plants. फैट्स के एनिमल सोर्स कौन से है? घी, मिल्क, बटर, क्रीम, मीट, फिश, एग्स। ओके, देन प्रोटीन्स, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्लांट सोर्स है ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज। एनिमल सोर्सेस है मीट, फिश, पनीर, एग्स एंड मिल्क। ओके, then these are some major constituent of food. Then vitamins and minerals.
जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, बट इट प्रेसेस अमाउंट, कम अमाउंट में। वो विटामिन हमें मिलते हैं। विटामिन ए हमें मिलता है पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क से। विटामिन बी मिलता है राइस, लीवर एंड व्हीट से। विटामिन सी वी गेट फ्रॉम ऑरेंज, guava, टोमेटो, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। Vitamin D we get from fish, egg, liver, butter, milk. Okay. Then along with that, our we get vitamin D in presence of sunlight. Our body can make that. Okay. Then uh, phosphorus, some minerals. Let's go to the minerals. Iodine. Iodine we get from ginger, shellfishes, fishes, leafy vegetable, and our salt. Phosphorus we get from banana, some grains, chilies, milk. Iron we get from pears, then meat, apples, spinach. Calcium we get from milk and eggs. Okay, till here we have done. Then let's learn today about balanced diet. What a balanced diet should be. बताइए, कैन एनीवन टेल मी कि बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए? हाउ द बैलेंस डाइट शुड बी? व्हाट मस्ट बी द constituents present in that? Okay, all the constituent which we have learned about, our body needs that in specific amount. Yes or no? बताइए। यस। ओके, हमने जो भी कंपोनेंट सीखे, हमारी बॉडी को थोड़े थोड़े अमाउंट में ये सारे चाहिए, राइट? सो ये सारे कंपोनेंट्स जिस डाइट में थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसी डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। ओके, अंडरस्टूड? लेट्स लर्न। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। डाइट मतलब क्या होता है? जो भी हम दिन भर खाते हैं, पीते हैं, ऑल दैट इंक्लूड इन अवर डाइट। ओके, देन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all the nutrient that our body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of other. The diet should also contain good amount of roughage and water. Such diet is called balanced diet. जो भी हमने कंस्टिट्यूएंट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ओके, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे प्रॉपर अमाउंट में हमारी जिस डाइट में हो, ना कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट्स कम है, फैट्स एकदम ज्यादा है, प्रोटीन कम है, ऐसा ना हो। और ये सारे कंस्टिट्यूएंट के साथ साथ रफेज, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एंड वाटर, ये सारे इंक्लूड हो, उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। अंडरस्टूड? एवरीवन, सगळ्यांना सबको समजा है व्हॉट इज बॅलन्स डाएट? सगळ्यांना समजलंय बॅलन्स डाएट म्हणजे काय? Do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? बताइए मुझे, सबको समान खाना लगता है? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ है, तो वो उतना ही खाते हैं जितना आप खाते हो?
टेल मी. नो. नो. एंड डू यू थिंक कि जो जितना फिजिकल वर्क करता है उसे उतनी भूख लगती है? जो जितना ज्यादा काम करता है उसे ज्यादा भूख लगती है, जो कम करता है उसे. यस. यस. जो फिजिकल वर्क करते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा सामान उठाना, यस, उनको हम सबसे ज्यादा भूख लगती है. एंड जो कम फिजिकल वर्क करते हैं दे डू नॉट फील वेरी हंग्री, उनकी डाइट थोड़ी कम होती है. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. Check whether all nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. फिर आपको क्या करना है, अभी आपको भी एक चार्ट बनाना है जिसमें रोज आपने एक वीक में क्या क्या खाया, और देखना है कि आप सारे जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो या नहीं. पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड दैट इज साउथ इंडियन फूड, जो भी इडली वगैरह होती है वो. ओके. देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, then thepla made from cereals and pulses, a banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. So ये सारे जो फूड मटेरियल है जैसे मूंग मूंग दाल, चना दाल, सोयाबीन, ग्राउंड नट, हमारे पीनट, ग्राउंडनट, पल्सेस, अलग अलग दालें, स्प्राउटेड सीड्स, कोई भी स्प्राउटेड सीड्स लो आप, चना या फिर मूंग. ओके. ये सारी चीजें. देन रोटी, इडली, फर्मेंटेड फूड, इडली वड़ा, डोसा, रोटी, थेपला, जो दालों से बनता है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, और जो भी सीजन के हिसाब से अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ये भी सारे आप अवेलेबल टाइम पे खाए तो आपकी डाइट बैलेंस बन सकती है. इसके लिए कोई एकदम सुपरमार्केट से जाके बहुत महंगी सी चीज लाके खानी है जिसमें प्रोटीन है, फिर प्रोटीन शेक बना के पीना है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती. जैसे हमें बताया जाता है कॉम्प्लान में ये है, बोर्विटा में ये है, सो इससे हम बढ़ेंगे, प्रोटीन्स है, ये है, वो है, मिनरल्स है, इसमें कोई जरूरत नहीं है. अगर आप ठीक से अपनी बैलेंस डाइट ले रहे हो सो यू डू नॉट रिक्वायर ऑल दोज थिंग्स जिसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है. ओके. गॉट. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? देखिए, हमने लाइक यस प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट्स वाला डाइट लिया, फैट्स वाला लिया, तो हमारी डाइट परफेक्ट है, ऐसा नहीं. जो भी चीजें है खाने वाली वो ठीक से पकी होनी चाहिए, वो अनकुक्ड भी नहीं रहनी चाहिए, लाइक पका हुआ नहीं है, कच्चा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एंड ओवर कुक्ड, ज्यादा भी पका हुआ नहीं चाहिए. अगर ऐसा हो, ओवर कुक हो जाए तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाते हैं. सो उनका खाने का कोई मतलब नहीं. लाइक अगर आप लीफी वेजिटेबल खा रहे हो और वो बहुत ज्यादा अ, पकी हुई है एकदम, और उसके पकने के बाद क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे लॉस हो गए, चले गए. सो इज देयर एनी यूज ऑफ योर ईटिंग दैट लीफी वेजिटेबल? क्या कोई यूज है उस लीफी वेजिटेबल को खाने का? नो. अगर उसमें न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो व्हाट्स द यूज देन? ओके. So, Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet?
व्हाट डू यू थिंक? पहेली हमें पूछ रही है कि एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की जरूरत है? उनके फूड्स में भी ये सारी चीजें होती होंगी? सम ऑफ द कंपोनेंट्स दे आर हैविंग, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि दे ईट ग्रेन, यस, देन they are having meat when they are young, then they are having meat, yes. So somewhat उनके भी कुछ components होते ही है. If the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamin. अगर आप सब्जियां एंड फलों को काटने और छीलने के बाद धोते हो, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो चले जाते हैं. सो उनको पहले धोना है, वॉश करना है, एंड देन यू हैव टू कट एंड ईट देम. ओके, गॉट? ओके. The skins of many vegetable and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. बहुत सारे सब्जियों के, नॉट सब्जियां बट फलों के तो स्किन बहुत सारे लोग निकाल के खाते हैं, लेकिन इट इज नॉट डन, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों के एंड फलों के जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसके स्किन में प्रेजेंट होते हैं. ओके, देन यस, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो दाल एंड चावल को धो के लिया जाता है. यस, हैव यू ऑब्जर्व? यस, यस, धोना जरूरी है, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली खेतों से लाया हुआ चावल या दाल नहीं खाते, वो प्रोसेस्ड वाला होता है. तो उसको कीड़े वगैरह ना लगे तो उसको कुछ इंसेक्टिसाइड लगाए जाते हैं एंड ऑल. सो अगर वो हमारे पेट में जाए, सो इट कैन हार्म अस. तो वो सारे धो डालने के लिए हमें ये सारे वॉश करके लेना जरूरी है. लेकिन एक्सेसिव वॉशिंग इज नॉट कंपल्सरी. ओके, एक्सेसिव वॉशिंग नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा बहुत बार नहीं धोना है, अदरवाइज उसमें जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो भी उसके पानी के साथ चले जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हमें पता है कि कुक करने से आपके जो भी वेजिटेबल्स है एंड कुछ फूड मटेरियल है उनमें टेस्ट आ जाती है एंड वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. जैसे कि पालक के पत्ते अगर आपको कच्चे खाने बोले जाए तो क्या आप खाओगे उनको? नो. और या देन अगर हम उसको साग बनाए, सब्जी बनाए, या फिर पराठा बनाए, सो पालक पनीर बनाए, सो यू कैन एंजॉय दैट, राइट? तो आप उसे खाओगे. यस. सो कुकिंग क्या करता है, हमारे फूड का टेस्ट एनहांस करता है एंड हमें डाइजेस्ट करना भी इजी हो जाता है, फूड पचाना इजी हो जाता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and it is then thrown away. Now, जैसे कि कुकिंग करने से, पकाने से चीजें अच्छी हो जाती है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है, उसी तरह से ज्यादा पकाने से उनमें से सारे विटामिन एंड मिनरल्स वॉश आउट हो जाते हैं. अगर पकाते वक्त हमने ज्यादा पानी डाला खाने में और वो उस पानी को बाद में फेंक दिया, तो जो भी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स है वो उसके साथ पानी के साथ चले गए और हम सिर्फ टेस्ट के लिए कुछ तो खा रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं मिलते. ओके.
Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर उसको हीट दी जाए तो। सो आपको क्या लगता है अगर विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो हम ऐसे ही कच्चे खाए रॉ खाए तो वो हमें इजीली मिल सकता है, राइट? जैसे कि आंवला है, लेमन है, ऑरेंजेस है, गावा है। यस, ये अगर हम कच्चे, ये तो हम कच्चे ही खाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हम अगर कच्चे खाए एंड वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, कैरेट, जो भी सैलड्स में हम खा सकते हैं वो अगर हम खाए तो हमें उसमें से जो विटामिन है तो इजीली मिल जाते हैं। ओके, गॉट? ओके, एवरीवन गॉट टिल हियर? यहाँ तक सबको समझा है? ओके, नाउ Bojo thought that fats would be the best food to eat all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. Fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweet. Do you think he was right? बताइए मुझे। बोझो हमें हमने सीखा है कि फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से वी हैव लर्न दिस कि फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी होती है। तो बोझो ने ये पढ़ा और उसने क्या किया, फैट्स खाना चालू कर दिया। सो 1 बाउल ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह बजाय वो 1 बाउल ऑफ फैट्स लेने लगा। तो समोसा, पूरी, रबड़ी एंड ऑल ये खाने लगा। तो इज इट राइट? You have already answered no. Absolutely not. No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food and we may end up suffering from the condition called obesity. तो हमें मोटापा मोटापा जो भी एक गंभीर समस्या है, अगर ओबेसिटी हो, मोटापा हो तो और बहुत सारे जो बीमारियां है वो हमें लग सकती है। तो अगर वो अवॉइड करना है तो एकदम फैट रिच फूड नहीं खाना है। इट इज ओके, आप पूरी खा रहे हो, वीक में से एक बार समोसा खा रहे हो, इट्स ओके, लेकिन रोज रोज वही खाना इट्स नॉट डन। ओके, यस एवरीवन, समझ आए सबको? ओके, गुड। डिफिशियंसी डिजीजेस, अगर ये सारे विटामिन वगैरह हम ना खाए तो क्या हो सकता है? A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर एक व्यक्ति के पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके खाने में से उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है और वो ही खाना वो बार बार खा रहा है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय से वो वही खा रहा है, तो उस न्यूट्रिएंट की उसको डिफिशियंसी होती है। उस न्यूट्रिएंट की उस व्यक्ति के बॉडी में कमी होती है।
डिफिशियंसी मतलब कमी। The deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases. So it किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की वजह से, कमी की वजह से हमारी बॉडी में कुछ हेल्थ कंडीशंस, हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कंडीशंस हो सकती है जिससे हमें कुछ डिजीजेस हो सकते हैं, तो उन सबको हमें डिफिशियंसी डिजीजेस बोलना है। ओके। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर किसी एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति के डाइट में प्रोटीन्स की कमी है, बहुत लॉन्गर पीरियड तक प्रोटीन्स की कमी है, जो मोस्टली वेजिटेरियंस जो दूध वगैरह भी नहीं पीते, ओके, दे ईट दाल्स एंड ऑल, बट many do not follow this the balanced diet, जिसके खाने में प्रोटीन्स की कमी होती है, तो वो बच्चा या फिर वो व्यक्ति आपको उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड होगी, ड्वार्फ दिखेगा और उसकी हाइट कम होगी। देन स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस स्वेल हुआ, सूजा हुआ नजर आएगा। देन डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर ब्लैक नहीं होगा। स्किन डिजीजेस एंड डायरिया, बहुत सारे त्वचा के रोग हो जाएंगे एंड डायरिया भी हो जाएगा। ओके। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. अगर आपकी डाइट कार्बोहाइड्रेट, अगर किसी पर्सन की डाइट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों को लैक करती है, दोनों नहीं मिल रहे उसको उसके डाइट से, तो वो इतना वीक हो जाता है कि वो खुद से मूव भी नहीं करता, हिलता भी नहीं है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. ये सारे जो बीमारियां है, कोई भी कंस्टिट्यूएंट के कमी के वजह से होने वाली, वो अगर हम बैलेंस डाइट ले तो हमें नहीं होंगी। In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrient needed by the body. So इस लेसन में हमने हर रीजन से जो भी फूड आते हैं उसमें किस तरह से हमारी बॉडी को सारे कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं वो सीखा। तो इस टेबल में आपको बताया गया है कि कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से क्या होता है। विटामिन ए, विटामिन ए अगर ना हो तो लॉस ऑफ विजन, आप देखने की अपनी शक्ति खो सकते हो। सिम्टम है पुअर विजन, कम नजर आना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नजर ना आना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरी तरह से आंखें हमें देखना बंद हो जाता है। विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से बेरी बेरी नाम का डिजीज होता है, जो कि वीक मसल्स होते हैं उसमें एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी बचती है। विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी नाम का डिजीज होता है, जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे जो दांतों के जो गम्स है उसमें से खून आता है। बोन्स लाइक टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर आपको खेलते वक्त या भी कभी कुछ लग जाए तो जो जख्म जो भी आपको जख्म होता है वो जल्दी से हील नहीं होता। विटामिन डी की डिफिशियंसी वजह से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें आपके जो बोन्स है वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड भी हो जाते हैं।
कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से बोन एंड टूथ डीके, वीक बोन्स वीक होने लगते हैं एंड टीथ जो टूथ है वो कैविटीज होती है उसमें डीके होते हैं वो। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर होता है जिसमें जो नेक में ग्लैंड्स होती है वो सूज जाती है, वो स्वोलन हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में गॉइटर हो तो वो मेंटली डिसेबल भी हो सकते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जो कि खून में आयरन की कमी की वजह से होता है एंड उससे वीकनेस आ सकती है। ओके, so here we have done with our lesson number 2. Have you understood? Yes, everyone is understood. Okay. Yes. Now tell me. नेम टू फूड, सबको दो दो फूड के नाम बताने हैं मुझे। फैट्स, चैट बॉक्स में लिखिए। टू फूड्स रिच इन फैट्स। यस, दो ऐसी चीजें जिसमें से हमें फैट्स मिलते हैं। लिखिए चैट बॉक्स में। खाने की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें से फैट्स मिलते हैं हमें? घी, बटर, मिल्क, फिश। यस और नो? लिखिए। प्रोटीन, प्रोटीन किस में से मिलते हैं? प्रोटीन, यस। और एग्स, यस। और दीज आर एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स कौन से है प्रोटीन्स के? पल्सेस, दाल, यस। पालक इज रिच इन आयरन। Okay. Your next 7th standard, your lesson, sorry, it's 8. Okay. Nutrients in animals, we have learned just now. Animals nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Okay. So including humans, हमारे साथ साथ अदर्स जो एनिमल्स है उन्हें भी फूड की जरूरत है, वो भी खाना खाते हैं, राइट? यस। ओके, सो दे also require a proper amount of food which is nutritious in all the way. Okay, so we have learned that process of photosynthesis,
by which plants prepare their own food. But animals cannot do photosynthesis, and animals get their food from plants, either directly by eating plant or indirectly by eating animals that eat plants. So plants अपना खाना खुद बना सकते हैं कौन से मेथड से? टेल मी. How plants can make their own food? What that process is called? Photosynthesis. Yes. By using the method of photosynthesis, plants can make their own food and कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम हर्बीवोर कहते हैं वो इन प्लांट को डायरेक्टली खा के सरवाइव करते हैं जैसे कि रैबिट एंड डियर एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि रैबिट एंड डियर को खाने वाला लायन एंड टाइगर. ओके. सो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. हमें पता ही है हमारी बॉडी की जो भी वेयर एंड टेयर है देन ग्रोथ रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी को ये बहुत जरूरी है कि हम खाना खाएं. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. सो हमारे जो न्यूट्रिशन है उसमें हमें क्या क्या सीखना है. मोड ऑफ इनटेक, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वो अभी हमने सीखा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमें लगते हैं विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. देन मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, खाना किस तरह से खाते हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और बॉडी में इसका किस तरह से यूज होता है. ओके. सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. सो टिल नाउ एवरीवन whatever we have learned have you understood. हमने आज टेस्ट के बारे में सीखा. देन फूड के कंस्टिट्यूएंट जो ना मिले तो क्या क्या हो सकता है दैट वी हैव लर्न एंड देन वी हैव स्टार्टेड फॉर the mode of nutrition. Okay, everything is understood. Okay, so we are going to stop over here for today. In the next lecture we will continue with the same. You all can leave the class now. Bye bye. Bye, Bye, teacher. teacher. Thank you. Bye. Welcome.